Hello dears, I am Dr. Chandrakant and you are watching Elite Academy YouTube channel for BSc 4th semester, and this is the special video that I am going to shoot for Mathematics 8. So this is your BSc 4th semester and this is your lecture number I think 8 or lecture number I think this is your lecture number 9. Lecture number 9 and unit 1 is going on. So I just put a date here, so you can symbolically can also the judge. Okay, तो अभी तक हमने रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट तक हम आ चुके थे. नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 9 बेसिकली. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फर्दर टॉपिक्स. Now in the further topics, before starting the numericals, we have to note down some certain things. So this is your note. I think this is note number 6. Let me check first. Okay. There is a one important theorem regarding the three forces. The theorem says that if there are three forces, acting upon a rigid body, acting upon a rigid body, keep it in equilibrium, then they meet either in a point or they may be parallel. A very important theorem. So just look, so that means there are three cases. Just for example, this is your force number F1 and suppose this is your force number F2 and this is your force number F3. These three forces are acting upon a body. This is a rigid body. For an example, this is a rigid body. So according to this theorem, what is the final conclusion? The conclusion, there are two conclusions. This is the first conclusion. We can say this is the case 1. If the three forces are acting upon a body, according to this theorem, they will meet in a single point. Just extend this force, extend this force, extend this force. So if you want to keep this body in an equilibrium, they will meet in a single point. So this is the first conclusion of this theorem. Okay. Now the second conclusion is that if they are not meeting in a single point, then they must be parallel like this. समझ गए? मतलब अगर एक सिस्टम में तीन फोर्सेस अगर है और तीन फोर्सेस अगर ऐसे एक्ट कर रहे हैं तो तीनों फोर्सेस सिंगल पॉइंट में मीट करेंगे. अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो दे विल नॉट मीट इन अ सिंगल पॉइंट. ठीक है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. देन देयर इज another important theorem which is popularly known as Lami's theorem. According to this Lami's theorem, if there are three forces meeting in a point, that means system is in equilibrium. Suppose this is P force, this is Q force, and suppose this is R force. The angle opposite to P force is suppose alpha. The angle opposite to Q force, suppose this is beta. Angle opposite to R force, let's suppose it is equals to gamma. ठीक है. So according to Lami's theorem, P, the angle opposite to P force is alpha. So ratio of P upon sin alpha. The ratio of Q, angle opposite to Q is beta, sin beta. Ratio of R to angle opposite to R, that is sin gamma, is always equal. So this is something like that. ओके, दिस इज समथिंग लाइक दैट. समझ गए
कि तीन फोर्सेज जो है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो P और उनके साइन का एंगल अपोजिट वाला रेशियो, P अपोजिट एंगल ही लेना, ठीक है, Q उसका जो अपोजिट एंगल होगा, R का जो अपोजिट एंगल होगा, तो इट विल बी लाइक दिस। तो इस तरीके का ये आपका शेड्यूल होगा। ओके, देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और अभी हमें करना है, थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लो, फिर हम चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो, now the important concept, important theorem, basically a condition of equilibrium. Condition of equilibrium. What is the condition of equilibrium? Condition of equilibrium says that for any system, whether it is two-dimensional system, whether it is three-dimensional system, summation of horizontal force, that is capital X, summation of horizontal force should be equal to 0. Summation of vertical force, that is capital Y, should be equal to 0, as well as the couple of resultant couple of moment, that should be equal to 0. That means all the three components should be equal to 0. Okay, in short, resultant is equal to 0 and G is equal to 0, then and then only we can say the system is in इक्विलिब्रियम। इसका प्रूफ भी आता है, लेकिन अभी आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में इसका प्रूफ नहीं आएगा, सो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर द प्रूफ। ओके, नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन वर्क। सो वर्क के लिए सबसे पहले तो आपका फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट यू ऑल नो, ठीक है। देन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेट मी क्लियर यू, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वर्क डन से रिलेटेड है यहाँ पे। उसके बाद वर्क डन से रिलेटेड कंसेप्ट के बाद वर्चुअल वर्क डन, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वर्चुअल वर्क। I have already told you displacement is visible. For example, A to B is a displacement. Okay, but if this displacement, जैसे ये initial position and this is the final position, so we can visualize the initial position and final position very clearly. But to achieve this final position, the particle will be displaced by very small distance. Whatever that we are observing is the final result. लेकिन particle थोड़ा सरकेगा ना, so that is virtual displacement basically, that is denoted by delta x. वर्चुअल डिस्प्लेस, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी नहीं है, विच इज नॉट ऑब्जर्वेबल, ऐसा उसका मीनिंग है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन टू कैरी दिस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा डब्ल्यू, सो दिस इज नोन एज वर्चुअल वर्क डन। सो दिस इज नोन एज वर्चुअल वर्क डन, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, फोर्स तो उतना ही है जितना मैग्नीट्यूड ये फार्मूले में होता है, इनटू डेल्टा एक्स, दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे जो डी एक्स है दैट इज इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विच इज नॉट इजीली ऑब्जर्वेबल, वो है आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस कंसेप्ट इज द वर्चुअल वर्क डन, ठीक है। एक बार इसको देख लो। हम अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फोकस कर रहे हैं।
next important concept on which there may be MCQ question, that is the principle of virtual work done. Principle of, 1 minute please, principle of virtual work done. प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन में क्या है बेसिकली कि कंडीशन हमें प्रूव करना है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन में सबसे पहले ये इफ एंड ओनली इफ वाला थ्योरम है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन में। तो स्टेटमेंट ऐसा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इज दैट सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्सेस इन एनी स्मॉल वर्चुअल वर्क डन कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये ऐसा है बेसिकली कि वर्चुअल वर्क डन जो होगा बाय ऑल द फोर्सेस, वर्चुअल वर्क डन इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब यह है कि अगर वर्चुअल वर्क डन 0 है, वर्चुअल वर्क डन अगर 0 है तो सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। या फिर और उल्टा बोलो, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो वर्चुअल वर्क डन क्या रहेगा, डेल्टा W इज इक्वल टू 0 रहेगा। ऐसा ये थ्योरम का फाइनल कंक्लूजन है। मतलब वर्चुअल वर्क डन 0 तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वर्चुअल वर्क डन 0 है। ठीक है, बराबर। समझ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट है आपका ये जो थ्योरम है दिस इज एक्टिंग, दिस इज एप्लीकेबल फॉर 2 डायमेंशन सिस्टम एज वेल एज 3 डायमेंशन सिस्टम। मतलब रिजिड बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल है और अपने XY प्लेन में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, बराबर। इस पे आपको MCQ क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क। अब ये वर्चुअल वर्क डन के जब प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं ना, तभी तो 6 मार्क के प्रॉब्लम है, तो ये 2 टर्म हमको समझना ज़रूरी है। टेंशन एक टर्म समझना ज़रूरी है और दूसरा समझना ज़रूरी है थ्रस्ट। टेंशन एंड थ्रस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन एंड थ्रस्ट। ठीक है, बराबर। अभी कैसा है, जैसे स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है A और B, ये स्ट्रिंग। टेंशन फ्लेक्सिबल चीज़ों में रहेगा, टेंशन विल ऑलवेज ऑकर इन द फ्लेक्सिबल थिंग, जैसे स्ट्रिंग, ठीक है, रबर। तो दिस ऑकर्स इन अ फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थ्रस्ट जो है दैट ऑकर्स इन ए रिजिड ऑब्जेक्ट लाइक रॉड। ठीक है, इसका स्ट्रिंग। ठीक है, अभी कैसा है, इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं आउटसाइड, व्हाट विल हैपन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन विल बी इक्वल्स टू रिएक्शन। तो मैं बाहर खींच रहा हूं तो टेंशन विल बी क्रिएटेड बट इन ए इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बराबर। ये उसका इनवर्ड डायरेक्शन है और उसका साइन कन्वेंशन जो लेते हैं हम वो निगेटिव लेते हैं टेंशन का। जब वर्चुअल वर्क डन के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं ना, द साइन कन्वेंशन ऑफ द टेंशन इज टेकन एज निगेटिव। ओके, थ्रस्ट में कैसा है, सपोज दिस इज द A पॉइंट एंड दिस इज द B पॉइंट एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्सेस, यू आर कॉम्प्रेसिंग, सपोज फॉर एग्जांपल लाइक दिस दिस इज द रॉड एंड आई एम कॉम्प्रेसिंग लाइक दिस। ठीक है, तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, तो मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूँ तो थ्रस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा और इसका डायरेक्शन लिया जाता है पॉजिटिव। ठीक है, बराबर, इसका डायरेक्शन लिया जाता है पॉजिटिव। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
बाकी फिर तो इसमें 6 मार्क के प्रॉब्लम आते हैं वर्चुअल वर्कडे में, जो अभी हमें फिलहाल नहीं प्रिपेयर करने हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल चालू करेंगे, दैट इज कैटेनरी। कैटेनरी, कैटेनरी में बहुत सारी डेफिनेशन जो है ना, डेफिनेशंस आपको पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, अभी हम हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैटेनरी। ये कैटेनरी का नया टॉपिक है जिसको यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैटेनरी का मतलब क्या होता है? कैटेनरी का मतलब ये होता है कि जब कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, फ्लेक्सिबल चेन बोलो, ऐसा 2 पॉइंट है, सपोज ए एंड बी, और ये फ्लेक्सिबल चेन ऐसी झूल रही है, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट, तो दिस कर्व इज नोन एज कैटेनरी। ठीक है, तो ये कैटेनरी का डेफिनेशन है लाइक दिस। ठीक है, ए बी 2 पॉइंट है आपके, बराबर, और ये चेन बोलो या फिर एनी फ्लेक्सिबल थिंग विच इज हैंगिंग इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, देन दिस कर्व इज नोन एज कैटेनरी। अगर ये स्ट्रिंग है या फिर चेन है, जो भी, इसका वेट अगर यूनिफॉर्म अगर है, मतलब कहीं पे मोटा, कहीं पे जाड़ा और कहीं पे पतला, ऐसा नहीं, अगर यूनिफॉर्म इसका वेट है, यूनिफॉर्म वेट इज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कर्व, तो फिर उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी, बराबर। अब इसकी कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स है। इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन का डेरिवेशन 6 मार्क के लिए पूछा जाता है, लेकिन अभी हम उसके फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा ये कर्व है, ए और बी 2 पॉइंट है, ये सी लोवेस्ट पॉइंट है चेन का और ये मिड पॉइंट है। ये हमने एक्सिस निकाला, वाई एक्सिस, और इसके नीचे एक्स एक्सिस, कोई भी एक पी पॉइंट लिया, वहाँ पे टेंजेंट निकाला, टेंजेंट मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, डिनोट किया एंगल साई, और ये जो सी पी डिस्टेंस है, सपोज दैट इज इक्वल टू यस, तो ये इंट्रिंसिक इक्वेशन मिलता है आपको, यस इक्वल टू सी टैन साई। सी ये आपका पैरामीटर है, सी को पैरामीटर बोला जाता है प्रॉब्लम के कंडीशन के अनुसार, जिसकी वैल्यू बदलती है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट, उसके और कुछ डेरिवेशंस है। ठीक है, द डेरिवेशंस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक है, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन था, ये कार्टेशियन इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्मेट में, तो ये y इक्वल टू सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट है, y मतलब ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट रहेगा, उसका वैल्यू मिलेगा आपको x हॉरिजॉन्टल। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट P है आपका, पॉइंट P का इफ़ यू नो द x एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द y, x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो, पैरामीटर आपको प्रॉब्लम में गया होगा, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है, सबसे पहला डेफिनेशन, वर्टेक्स किसे बोला जाता है कैटेनरी में? कैटेनरी में वर्टेक्स बोला जाता है लोवेस्ट पॉइंट। मैं बोला ना आपको, अगर आपका स्ट्रिंग ऐसा झूल रहा है तो एक लोवेस्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है, दैट लोवेस्ट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट के नीचे जो एक्सिस निकाला जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, उसे बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। तो इन दिस केस एक्स एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। ये जो हैंगिंग पॉइंट है उसका जो मिड पॉइंट है डी, विच इज पासिंग थ्रू लोवेस्ट पॉइंट सी, ये जो वर्टिकल लाइन है उसे बोला जाता है एक्सिस, और वो है अपना वाई एक्सिस। ए और बी का जो भी डिस्टेंस है दैट इज नोन एज स्पैन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सैग। सैग मतलब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, डी पॉइंट जो मिड पॉइंट है ए बी का, और लोवेस्ट पॉइंट, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है सी डी, उसे बोला जाता है सैग। और ये जो कांस्टेंट, ये जो लेते हैं ना प्रॉब्लम में, दिस इज व्हाट वी कॉल द पैरामीटर। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द कैटेनरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनरी और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स हम लेंगे जो आपको ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।